Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. Topic of today's lecture is Theory of Electronic Spectroscopy and Electronic Transitions, which comes under the syllabus of General Paper 2nd, Unit 1st, UV Visible Spectroscopy. UV visible spectroscopy is known as electronic spectroscopy. When the molecules absorb UV or visible lights, its electrons get promoted from ground state to higher energy state. The range for UV visible spectra is 200 to 800 nanometers, from which 200 to 400 nanometer is called UV region, while 400 to 800 is called visible region. And UV region is further divided into two parts. First is near or quartz region, which is from 200 to 300 nanometers, and second for far or vacuum region, which is from 10 to 200 nanometers. तो ये UV विजिबल स्पेक्ट्रा की रेंज है 200 to 800, जिसमें से 200 to 400 नैनोमीटर्स UV के लिए और 400 to 800 जो है विजिबल रीजन के लिए है. The use of UV and visible radiations is in the electronic excitation accompanied by rotational and vibrational changes, and it is useful for the detection of unsaturation, conjugation and aromatic systems. In the ground state, the spins of the electrons are essentially paired. In the higher energy state, if the spins of the electrons are paired, then it is called excited singlet state. ग्राउंड स्टेट में तो स्पिन्स आप जानते हो पेयर्ड होती हैं, और अगर हायर एनर्जी स्टेट में भी होती हैं पेयर्ड तो उन्हें बोला जाता है सिंगलेट स्टेट. If the spins of the electrons in the excited state are parallel, is called an excited triplet state. अगर स्पिन्स पैरेलल होती है एक्साइटेड स्टेट में तो वो कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट. द ट्रिपलेट स्टेट इज ऑलवेज लोअर इन एनर्जी एंड मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट. जहां भी एनर्जी लो होगी मीन्स स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए ट्रिपलेट स्टेट जो है सिंगलेट स्टेट के कंपेयर में हमेशा स्टेबल होती है. Because in triplet state, electron repulsion is minimum because electrons are farther apart. Parallel होने के कारण electrons दूर दूर होंगे, इसलिए electron repulsion उनमें बहुत कम minimum होगा. The absorption of UV or visible light results in singlet ground state to excited state, singlet excited state, that is excitation proceeds with the retention of spin. Means singlet ground state से हमेशा excited singlet state में ही transition होगा UV और visible light के absorption से. An excited singlet state is converted to excited triplet state when the emission of energy as light. जब emission होगा तो सिंगलेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ट्रिपलेट स्टेट में, और जब एब्जॉर्प्शन होगा तो सिंगलेट से सिंगलेट में ही कन्वर्ट होगी. द ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट इज सिमेट्री फॉरबिडन. सिंगलेट से लेके ट्रिपलेट तक सिमेट्री फॉरबिडन है, मीन्स अलाउड नहीं है. फॉरबिडन है मीन्स सिमेट्री अलाउड नहीं है. Now, types of electronic transitions or nature of electronic transitions. According to the molecular orbital theory, when a molecule is excited by the absorption of energy, its electrons are promoted from a bonding to an anti-bonding orbitals. अब आप जानती हैं, as you know, what is sigma bond? Single bonds are sigma bonds and double bonds are pi bonds, and lone pairs are non-bonding electrons जिसको कि n से डिनोट किया जाता है. अब इसमें शो हो रहा है फिगर में
सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, देन पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, देन एन मीन्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, उसके बाद पाई स्टार मीन्स पाई एंटी बॉन्डिंग है, देन सिग्मा स्टार मीन्स सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एनर्जी के अकॉर्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग सबसे लोएस्ट एनर्जी, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। तो जैसे कोई मॉलिक्यूल है, हम एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें सिंगल बॉन्ड है जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर कोई हीट्रो एटम प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है या क्लोरीन है, जिन पे कि लोन पेयर पाया जाता है, तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो N जो डिनोट करता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को डिनोट करता है। द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स which is associated with the excitation of sigma electron is called sigma star, means sigma antibonding orbital. So sigma to sigma star transition takes place when sigma electron is promoted to antibonding sigma orbital and represented by sigma to sigma star transition. When a non-bonding electron gets promoted to an antibonding sigma orbital, then it represents N to सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जैसा कि ये फिगर में दिख रहा है, और एनर्जी लेवल्स भी दिख रही है कि एनर्जी की पोजीशन क्या है। सिमिलरली पाई टू पाई स्टार मींस पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन रिप्रेजेंट्स द प्रमोशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू एन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड पाई स्टार ऑर्बिटल, व्हिच इज शोन इन फिगर। Similarly, when an electron, N means non-bonding, is promoted to anti-bonding pi orbital, it represents N to pi star, means non-bonding to pi anti-bonding transitions. तो इस तरह से ये ट्रांजिशंस है और किस तरह से इनका एक्साइटेशन होता है, और N जो है वो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। As an N electrons do not form bonds, there are no anti-bonding orbitals associated with them. जैसा कि सिग्मा और पाई के साथ सिग्मा स्टार है तो एंटी बॉन्डिंग है, पाई के साथ पाई स्टार है तो पाई एंटी बॉन्डिंग है, ऐसा N नॉन बॉन्डिंग के साथ कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं बनता है, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। इट इज क्लियर। अब इनका जो अरेंजमेंट है वो हम देखते हैं। तो ऑर्डर जो होता है इसका, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ट्रांजिशंस ओबे द फॉलोइंग ऑर्डर। ट्रांजिशंस आर अरेंज्ड इन देयर डिक्रीजिंग एनर्जीज, लाइक फर्स्ट सिग्मा टू सिग्मा स्टार मीन्स सिग्मा बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। देन N टू सिग्मा स्टार मीन्स नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उसकी एनर्जी होती है। देन पाई टू पाई स्टार मीन्स पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। फिर लास्ट है लोएस्ट एनर्जी N टू पाई स्टार मीन्स नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये इनकी ऑर्डर ऑफ जो है एनर्जी है। और वेवलेंथ अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ विल बी रिवर्स हो जाएगी वेवलेंथ। द हायर एनर्जी ट्रांजिशंस ऑकर एट शॉर्टर वेवलेंथ व्हाइल लोअर एनर्जी ट्रांजिशंस ऑकर एट लॉन्गर वेवलेंथ। तो दिस इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। सो UV visible spectroscopy is very important technique for the structure determination, and we can determine the unsaturation, conjugation and aromatic nucleus in the molecule. Thank you.